Okay, let's see chapter number 2, the thief's story. The thief's story is written by Ruskin Bond. Who is the writer? Ruskin Bond. Ruskin Bond. Ruskin Bond is a Indian writer. He is an Indian writer, and he always writes all his stories on the basis of culture and the village story and incident. So in this story, he takes himself as a thief. Remember, in this story, he takes himself as a thief, and he is narrating this story, what happened with a thief. So this is the story of a thief who has been transformed into a gentleman. As he was a thief and he had very good hands, he used to rob the people, he used to cheat the people. But when he met a man whose name was Anil, he was a writer. He was not greedy. He used to write articles, letters, stories, and it is to be printed in the newspaper as well as the magazine. And after that, it is sold. And the amount what it comes to Anil, he used to survive himself by using that particular amount. So he was not rich enough. He had even no capacity to keep any servant also. One day, so he met a thief. A thief, what kind of a thief? His habit was to change his name regularly. Means every month he used to change his name. He wanted to just hide his identification from himself, from the police as well as the employers. Employers means to whom he had cheated in past. They are called here employer. Okay, because he was a thief. In past, he might have cheated someone like a very businessman or someone, student, teacher, whatsoever. Because cheater can cheat anyone. So he had already cheated some employers, some people. So he wanted to hide himself. He had narrated some name like ABC or whatsoever, XYZ. But this time, when he met Anil, he told his name Hari Singh. Remember? Because the character of the Hari Singh and the Anil, the story just take a good round of Anil Singh and Hari Singh. Now we should start our story. Story is what? One day what happened? One day Anil was a writer and Anil was watching a wrestling match. He was watching a wrestling match. Do you know wrestling? Yes. Fighting. Don't say fighting. Wrestling means it's a kind of a game. And fighting is not a kind of a game. Wrestling means kusti. Wrestling means kusti, palwani. So he was watching a wrestling match. And he was lean, thin and looking very good kind of a person. Suddenly, a man, a boy who was near about 15 years old, later on he told his name Hari Singh. So he was a thief and he saw Anil. He saw Anil and thought to make him victim. As because he was very simple kind of a person. So he approached to the Anil and started muttering, started showing great interest in him. As because Anil was a very simple person. So they both discussed to each other about the wrestling matches. Sometimes he pretended to show that you are also looking a good wrestler. Anil laughed and told that to himself that he is buttering something. So he was buttering. He understood. वो समझ गया कि ये क्या कर रहा है. अब ये लीन थीन पतला दुबला सा इंसान, मैं अगर रेसलिंग मैच देखने खड़ा हो गया तो इसका मतलब मैं रेसलर हूँ, ऐसा नहीं. तो वो उसे रेसलर की तरह थोड़ा सा एग्जाम्पल देने की कोशिश किया. So he thought that कि जब इसने इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो इसने कहा ये तो बात नहीं बन रही है. तो अनिल मूव्ड अहेड. अनिल जैसे ही आगे बढ़ा तो थिफ ने पीछे से पूछ दिया कि सर क्या आप मुझे जॉब देंगे, अपने साथ रखेंगे? Could you hire me? Anil simply replied that I am not such kind of a person who spend luxurious time or luxurious style. So I cannot pay you. Then again, the thief asked that could you feed me?
if I can feed you if you have idea how to cook food. उन्होंने क्या कह दिया, हाँ मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ, लेकिन अगर उसके लिए तुम्हें क्या आना चाहिए, खाना बनाना आना चाहिए. अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खिला सकता हूँ. उसने कहा कि हाँ मुझे खाना बनाना आता है. It was the first lie. It was the first lie of the thief. वो पहले झूठ बोलता है कि मुझे खाना बनाना आता है, जबकि उसे खाना बनाना नहीं आता. उसे क्या आता है, सिर्फ चोरी करना आता है, चीट करना आता है, और उसने झूठ बोल दिया कि मुझे खाना बनाना आता है. अब वो ले करके जाता है और अनिल उसे बिठा करके सिखाता है कि देखो ये रहा तुम्हारा रहने का जगह. बरामदे में उसने बताया कि यहाँ पे तुम रहो, ये रहा किचन और यहाँ पे खाना. शाम को जब वो चोर खाना बनाता है, वो थीफ खाना बनाता है, तो वो खाने का टेस्ट ऐसा था कि अनिल जैसे ही पहले ही थोड़ा सा खाना खाता है, ही जस्ट स्पाइटर, वो स्पाइट कर देता है, यानी वो जो निगल खा नहीं पाता है वो थूक देता है और पूरा खाना उठा के कुत्ते को दे देता है. अब ठीक समझ गया कि दिस इज ऑल ओवर, आज मेरा गेम खत्म, क्योंकि मेरी चोरी पकड़ी गई और मेरा झूठ भी पकड़ा गया. लेकिन फिर वो पूछता है कि ठीक है कोई बात नहीं, बिकॉज ही वॉज अ वेरी गुड पर्सन. अनिल जो था वो एक बहुत अच्छा इंसान था, वो एक अच्छा राइटर था. तो उसने तुरंत से क्या कह दिया कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा. He told कि मैं तुम्हें क्या करूंगा, खाना बनाना सिखाऊंगा. He promised. As he was not educated, who was not educated? The thief was not educated. Because at the age of 15 only he had great hands. He had great hands in thieving or doing something or maybe cheating someone. He इस चीज में वो महारत हासिल था उसे. He had many scars on his faces also. उसके चेहरे पे कई सारे स्कैर्स थे, खरोच के निशान भी थे. तो इससे पता चलता है कि वो बहुत ही सिंपल सीधा साधा जो इंसान बच्चा नहीं था. तो उसने कहा कि मैं तुम्हें पढ़ना लिखना भी सिखाऊंगा. अब ये सोच करके वो तो रख लेता है. अब अनिल के पास पैसे थे नहीं. उसने पूरे, जब अनिल के एब्सेंस में उसने पूरे घर को भी चेक किया तो देयर वाज नथिंग टू बी स्टोलन. चोरी करने लायक तो कुछ सामान था ही नहीं घर में. तो ही थॉट दैट कभी तो इसके पास पैसे होंगे तभी मैं अपनी चोरी करूंगा. So on that day onwards, Anil told to bring vegetables from the market and groceries. वो ग्रोसरी और मार्केट से सामान वगैरह लाने के लिए उसने कह दिया कि वहां से जाओ, ये पैसे ले करके जाओ. Every day, every week he used to give some amount to purchase groceries and vegetables. As he was a thief, he was not an honest person. He was a thief. So every day or at every purchase, he used to cheat at least 1 rupees 50 paise, 1 rupees 50 paise at every interval. And every week also, Anil used to give him some amount to go for the cinema. कुछ पैसे इसलिए भी दिया करता था कि जाकर के सिनेमा वगैरह देखना. तो वो भी पैसा वो क्या कर रहा था, सेव कर रहा था. बिकॉज ही वॉज अ थीफ. वो तो एक थीफ का चोर था, तो चोर सिनेमा देखने कैसे जा सकता है. वो तो खुद को लोगों से बचाने की कोशिश करेगा कि लोग पहचान न लें. तो ही वांटेड टू हाइड हिज आइडेंटिफिकेशन. तो वो पैसे इस तरह जमा करता रहा, कुछ 1-1 रुपए करके. देयर वाज अ डे, एक दिन ऐसा आया कि जब अनिल के जो बुक्स वगैरह थे, अनिल के जो बुक्स या जो स्टोरीज थी उन्होंने प्रिंट करने के लिए दिया था, वो प्रिंटिंग करने के बाद प्रेस वाले की तरफ से कुछ पैसे आए. सो इट वाज सम अमाउंट. जब वो अमाउंट आया तो अनिल ने उसे दिखा के कहा कि देखो आज मेरे पास कुछ पैसे आए हैं और आज मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकता हूँ. तो उसने उसे पैसे दिए, 50 रुपए दिए कि ये रख लो. और फिर वो बाकी पैसों को उठा करके क्या कर दिया, अपने बेड, अपने पिलो के नीचे रख दिया. रख करके जब रात हुई, अब इसे तो नींद आ नहीं रही थी. किसे नींद नहीं आ रही थी? हरी सिंह को. तो उसने, क्योंकि अब अनिल ने पूछ भी लिया था कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने दूसरा झूठ बोला था कि मेरा नाम हरी सिंह है. इट वॉज अ प्रिटेंडेड नेम, द सेकंड लाई. तो वो अब सेकंड लाई था. फर्स्ट लाई क्या था कि मुझे खाना बनाना आता है. सेकंड लाई क्या था कि मेरा नाम हरी सिंह है. तो अब इस तरीके से जैसे ही रात होती है और वो अनिल सोया हुआ होता है, अब ये चुपके से जाता है और जाकर के क्या करता है, वो पैसे निकाल लेता है. सारे पैसे उसके डर के मारे उसकी हालत खराब थी. बट एनी हाउ ही मैनेज एज बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट थीफ. उसके हाथ सफाई में वो माहिर था. तो उसने पैसे निकाले और निकाल करके अपने पजामे के अंदर ऐसे रखा, टक किया और चुपके से धीरे धीरे टिप टॉक करके, जैसे आवाज ना हो, बाहर निकला और वो रोड पे चलना शुरू कर दिया. समटाइम्स ही वाज रनिंग, समटाइम्स ही वाज वॉकिंग, बट एज बिकॉज ही वाज फ्राइटेंड दैट ही वुड बी कॉट. उसे ये भी डर था कि कहीं पीछे से पकड़ा ना जाओ.
बट सोच लिया था कि मुझे यहाँ से कहाँ जाना है, स्टेशन जाना है, वहाँ से लखनऊ एक्सप्रेस पकड़नी है गाड़ी, मुझे डायरेक्ट लखनऊ चले जाना है। ही काउंटेड इवन द मनी वॉज देयर एंड उसे बार बार वहाँ हाथ रखते हुए जा रहा था। ऑन द वे ही फाउंड दैट इट स्टार्टेड डिजलिंग, वो थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की बारिश होने लगती है, जिसके वजह से उसका जो थोड़ी मतलब बॉडी भीगने लगता है। फिर वो किसी तरह से तो पहुंच तो जाता है, स्टेशन पहुंचता है। ऑन द वे ही फाउंड दैट, अब वो पूरी कहानी उसे याद आ रही है कि हाउ वाज अनिल व्हेन आई अप्रोच्ड, how he had given me a chance to transform me and he had shown a great faith in me। उसने मेरे ऊपर कितना भरोसा दिखाया। उसे लगा कि मैं अगर इस तरह के इंसान का भरोसा तोड़ता हूँ तो आगे चल करके ऐसा इंसान कभी किसी की हेल्प नहीं करेगा, कभी किसी की जब हेल्प नहीं करेगा तो ऐसे सिचुएशन में किसी को मौका नहीं मिलेगा। सो दिस वाज द सिचुएशन एंड ही जस्ट कंज्यूम एवरीथिंग, वो सारी चीज़ों को सोचता रहा, सोचते सोचते स्टेशन पहुंचा एंड ही हैड अ ग्रेट चांस टू एस्केप फ्रॉम देयर। भागने का बहुत अच्छा मौका था क्योंकि गाड़ी आई और वो जा सकता था, एज ही डिड नॉट टेक एनी टिकट भी नहीं लिया क्योंकि चोर टिकट थोड़ी खरीदता है, तो वो आराम से वहाँ से भाग सकता था। बट उसके दिमाग में आया कि नहीं, मुझे ऐसे इंसान को चीट नहीं करना चाहिए। एंड फिर उसने सोचा कि अब मैं जाऊँ कहाँ, होटल में जा नहीं सकता, बाहर जा नहीं सकता, लोग पकड़ लेंगे। बट ही डिसाइडेड टू गो बैक वंस अगेन टू अनिल हाउस, और वो अनिल के घर की तरफ जा रहा होता है। रास्ते में उसे बारिश वगैरह होती है जिसकी वजह से वो भीग जाता है। दौड़ते भागते दिमाग में ठान लेता है कि कुछ भी हो जाए अब मैं जा करके, वो किसी तरह पहुंचता है। एनी हाउ ही प्लेस द सेम बंडल ऑफ नोट्स अंडर द मैट्रेस, मैट्रेस के अंदर डाल देता है। दूसरी सुबह अब वो बड़े शांति से सोया था बिकॉज ही वॉज सक्सेसफुल इन ऑर्डर टू टेक द कैश एंड इन ऑर्डर टू कीप द कैश एट द सेम प्लेस। दोनों काम करने में वो सक्सेस हो जाता है। सुबह उठ करके अब जैसे ही अनिल उसे जगा के कहता है ये लो चाय, और चाय देते हुए अपने हाथों से वो 50 रुपये का नोट निकाल के कहता है ये लो, अब मैं कुछ अर्निंग कर सकता हूँ, सो आई कैन पे यू रेगुलरली, आज के बाद मैं तुम्हें हर महीने सैलरी दूंगा। अब जैसे वो हाथ में वो पैसा लेता है, फाउंड दैट द नोट वाज अ लिटिल बिट डैम्प। रात की बारिश की वजह से क्या हुआ था, डैम्प हुआ था। तो उसे लगा कि अगर ये नोट डैम्प है तो ये जिस तरह मुझे समझ में आ रहा है उसी तरह किसे समझ में आ गया होगा, अनिल को भी ये बात समझ में आई, मेरे पैसे खुद ब खुद तो टहलने नहीं गए हुए थे पानी में, इसे कोई लेके गया था। बट ही न्यू दैट ही वाज चीटेड, बट डिस्पाइट नोइंग दैट द मैन वाज ट्रांसफॉर्म्ड, ही टोल्ड दैट नथिंग टू से। जब वो फिर ना कभी कुछ बोला और ना ये बोला, बट एनी हाउ आफ्टर दैट ऑन रोड्स उसने ये भी बात सोचा था रास्ते में जाते हुए स्टेशन पे जब गाड़ी पकड़ने को, तो उसने सोचा कि मैं एक ऐसा बच्चा था जिसे लिखना पढ़ना नहीं आता था, बट दिस वाज द मैन हु टॉट मी हाउ टू राइट एंड दिस वाज द मैन हु टॉट मी हाउ टू बिहेव टू ईच अदर। एंड वो बहुत सारी चीज़ों को सोचते सोचते फाइनली ही वाज ट्रांसफॉर्म। सो दिस वाज द स्टोरी दैट वी लर्न इन अ समरी वे। एंड नाउ जस्ट यू पुट योर हैंड्स, पुट योर फिंगर on the line and we should start.